today we are taking another important topic of gravitation, that is gravitational field. First of all, we have to understand the meaning of gravitational field. Basically, as we know that if Earth is present, then it will attract other objects which are placed on the surface or near the surface. That means every object will be attracted towards the center of the Earth. So, the reason, the space around a material body within which its gravitational pull can be experienced is called gravitational field. यानी अर्थ का एक ऐसा सराउंडिंग रीजन जहाँ तक अगर बॉडी प्लेस्ड है और उसको ड्रॉप करते हैं देन इट विल फॉल टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ. यानी इसका सराउंडिंग रीजन जैसे एक मैग्नेट होता है, मैग्नेट के सराउंडिंग उसका अट्रैक्टिव रीजन होता है कि अगर हम एक कोई मैग्नेटाइजिंग सब्सटेंस को उसके क्लोज रीजन में लेके आते हैं तो जितना क्लोज होगा उतना ही अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग होता है. यानी इस मैग्नेट का अपना एक सराउंडिंग रीजन होता है, एक स्पेस होता है जिसमें कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस इसके फील्ड से इन्फ्लुएंस हो जाता है. तो ऐसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हुआ, इट इज अ स्पेस अराउंड अ मटीरियल बॉडी. मटीरियल बॉडी यानी कोई प्लैनेट हो गया जिसका हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं, फील्ड की बात कर रहे हैं. स्पेस अराउंड द मटीरियल बॉडी इन विच इट्स ग्रेविटेशनल पुल कैन बी एक्सपीरियंस्ड. दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड. नाउ दिस इज द रीजन. Now, if we have to measure the strength of this gravitational field, we will term it as intensity of gravitational field. Now, what is the intensity of gravitational field? So, first of all, let me take its definition. Intensity of gravitational field of a body at a point within which region? Within this gravitational field region. So intensity of gravitational field of a body at a point in the field is defined as the force experienced by a body of unit mass. Force experienced by a body of unit mass placed at that point, provided presence of unit mass does not disturb original gravitational field. That means it is the force experienced by a body having unit mass placed at that point, providing the presence of this unit mass will not influence, will not disturb original gravitational field. That means in comparison to Earth, if we are taking Earth's के कंपैरिजन में अगर हम कोई भी बॉडी लेते हैं तो इसका अपना ग्रेविटेशनल पुल इट विल बी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दैट ऑफ द अर्थ. सो दैट्स व्हाई इट हैज बीन गिवन द प्रेजेंस ऑफ यूनिट मास डज नॉट डिस्टर्ब ओरिजिनल ग्रेविटेशनल फील्ड. Now to find its expression, let m be the mass of a body with center of gravity at O. That this is a body having center of gravity at O and mass situated at the center is m. Let F, capital F, be the gravitational force of attraction experienced by a test mass. Test mass, small mass हम जिसके ऊपर experiment कर रहे हैं उसको हम m naught से represent कर रहे हैं. So let F be the gravitational force of attraction experienced by a small test mass when placed at a point P in the gravitational field of the body. मान लो हमने इसको x distance पे रखा है and it is at a distance x from the center, that is it is at a point P. So correspondingly let OP equal to x. According to Newton law of gravitation, this force will be gm naught upon x square. यानी कोई भी दो बॉडीज जब एक दूसरे से सेपरेटेड हैं किसी डिस्टेंस से तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स. नाउ as per the definition of intensity, that intensity of gravitational field, it is defined as the force experienced by unit mass, force per unit mass. This is equal to g m naught
upon x square into m naught. So it will come out to be gm upon x square. So this is the intensity of gravitational field. Basically, if we write it in the vector form, this is gm upon x square x cap, where this negative sign indicate that this gravitational intensity, it is of attractive nature. Gravitational force is of attractive nature, and this is the influence of this attractive force. So that's why intensity negative means the attractive force is existing between them. Now if we take x to be infinity, तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी जीरो. यानी किसी भी बॉडी की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, जितना उस बॉडी से दूर जाएंगे उसका अट्रैक्टिव फोर्स उतना ही मिनिमम होता चला जाएगा. सो आइडियल कंडीशन अगर हम लेते हैं, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज जीरो. नाउ इफ यू आर टेकिंग अ टेस्ट मास m नॉट, इट इज फ्री टू मूव. यानी हमने जो पॉइंट p लिया था डिस्टेंट x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो अगर हम कहते हैं कि मान लो m नॉट बॉडी जो टेस्ट मास है, इट इज फ्री टू मूव एट पॉइंट p. सो इट विल बी एक्सीलरेटेड. एक्सीलरेशन क्या होगा? ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स ऑफ द बॉडी. यानी ये जो हम कोई ऑब्जेक्ट, बड़ा ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, जिसको हम प्लैनेट भी कह सकते हैं, या कोई भी मटेरियल बॉडी जिसका मास m है, तो अगर हम मान लो कोई पार्टिकल, कोई बॉडी m नॉट यहाँ कंसीडर करते हैं, तो इट विल बी एक्सीलरेटेड. Let A be the acceleration produced under that force of attraction. तो force क्या हो जाएगा? m naught into A. So acceleration will be force per unit mass. अब force per unit test mass, this is, what is this? This is the intensity of gravitational field. So यहाँ से हम एक relation और कह सकते हैं, that intensity of gravitational field at a point in gravitational field is equal to the acceleration of the test mass placed at that point. What we are saying, intensity of gravitational field at a point in the gravitational field is equal to acceleration of test mass placed at that point. And now if the point P is taken on the surface of Earth such that x equal to r, तो इंटेंसिटी को हम कैसे लिख सकते हैं? gm upon r square. अब देखिए gm upon r square का एक्सप्रेशन किसके इक्वल है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो हियर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो अगर हम यहाँ से कंक्लूड करें, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड? सो अगर हम ऐसा यूनिट लेते हैं तो क्या होगा? न्यूटन पर किलोग्राम, क्योंकि हम इसको बेसिकली क्या ले रहे हैं? फोर्स पर यूनिट मास लेके चल रहे हैं. और अगर ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल भी आ रहा है, तो हम बेसिकली इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सिमिलरली इन CGS सिस्टम इट इज डाइन पर ग्राम और सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. So this is the brief concept of intensity. Intensity is nothing but we are measuring the strength of gravitational field. So the strength of gravitational field at any point is measured as basically force per unit test mass placed at that point, and it is also equal to acceleration. And when the point is lying on the surface of the body, then you can say it is equal. Surface of body यानी body हम अर्थ assume कर रहे हैं, तो उस केस में intensity is equal to acceleration due to gravity. Now if we plot graph between intensity ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, जिसको हमने एक तरह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिया है, और इसको हम डिस्टेंस के साथ जब प्लॉट करते हैं, तो स्पेशली अगर हम स्फेरिकल शेल कंसीडर करें, यानी होलो है अंदर से, तो उस केस में इन द स्फेरिकल शेल हियर इंटेंसिटी इज इनिशियली जीरो एंड देन इट विल हैव वेरिएशन लाइक दिस. इट इज वेरिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r square. Whereas if we are plotting this for the solid sphere, then it will follow the curve like this. That is maximum value at the particular surface, that is r equal to capital R, and after that it is having this kind of variation. So you just know how to draw the plot for spherical shell and the solid sphere. Now next term is gravitational potential. Gravitational potential at a point in gravitational field, it is defined as
the amount of work done in bringing a body of unit mass from infinity to that point. That means whatever amount of work done in bringing a body, condition क्या है, हम mass unit consider करते हैं, whatever amount of work done in bringing a body of unit mass from infinity to the point without acceleration. So this is gravitational potential. So here this is work done per unit mass. So now in order to find out the expression for gravitational potential, so first of all we will consider Earth to be a perfect sphere, that it is having radius r, mass m and center O. So here we assume that the mass of Earth is supposed to be concentrated at the center, and we have to calculate gravitational potential at a point P, distant x from the center of the Earth, that we are calculating gravitational potential at point P. So let me consider 2 points. Let one point be is here, another point is here. So take 2 points on the line joining OP. If we are producing it, let A point is at, okay, let me take this OP distant to be R and this OA to be X. X हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें जब अब यहाँ पर आगे स्टेप प्रोसीड करना है तो when we will do it in terms of X dx. So let me take this OP to be equal to R, and A and B with the 2 points, they are separated by a distance of dx. Now work has to be done in moving a unit charge from point A to point P. So let me solve it. Now gravitational force of attraction on a body of unit mass. Let a body having unit mass, it is placed at point A. So gravitational force of attraction on a body of unit mass. अब क्या होता है फॉर्मूला, G m हो गया इसका मास, एंड स्मॉल m अगर हम लेते हैं यूनिट मास है तो 1 डिवाइड बाय डिस्टेंस, सेपरेशन डिस्टेंस x स्क्वायर. सो force of attraction on a body of unit mass by a body of mass capital M, this one. अब अगर हम कहते हैं इस यूनिट मास बॉडी को हम A पॉइंट से B पॉइंट यानी स्मॉल डिस्टेंस से मूव कराते हैं तो स्मॉल वर्क डन होता है. तो स्मॉल वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी ऑफ यूनिट मास फ्रॉम पॉइंट A टू B. तो स्मॉल वर्क डन को हम dw स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं, हो जाएगा फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट. सो इट इज gm अपॉन एक्स स्क्वेयर इंटू dx. तो अगर हम कहते हैं टोटल वर्क डन, अब टोटल वर्क डन में हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली बॉडी को लेके आ रहे हैं इनफाइनाइट लार्ज डिस्टेंस से किसी फाइनाइट पॉइंट P पर. सो वी आर ब्रिंगिंग इट द बॉडी फ्रॉम वेरी लार्ज डिस्टेंस. तो उस वेरी लार्ज डिस्टेंस को हम एज्यूम कर लेते हैं दैट इज फ्रॉम इन्फिनिटी. सो टोटल वर्क डन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग दिस स्मॉल वर्क डन विद इन द एक्सट्रीम लिमिट्स. अब एक्सट्रीम लिमिट्स क्या है, कहाँ से लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से. किस पॉइंट पर P, जिसकी पोजीशन का डिस्टेंस कितना है सेंटर से R. सो एक्सट्रीम लिमिट्स विल बी इन्फिनिटी टू R. अब इसे इंटीग्रेट करें, gm कांस्टेंट है और x 1 बाय एक्स स्क्वेयर dx, जिसको मैं लिख सकती हूँ gm इन्फिनिटी टू r x की पावर -2 dx. तो यहाँ से हो जाएगा, इंटीग्रेट का फॉर्मूला लगाइए, दिस इज x की पावर -2 + 1 -2 + 1, दिस इज इन्फिनिटी टू r. सो यहाँ से हो जाएगा ये gm, दिस इज अपॉन -1 बाय x. अब अगर हम यहाँ लिमिट्स पुट करते हैं तो माइनस साइन बाहर ले लिया, x की जगह पहले r फिर इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा -gm अपॉन r. सो
total work done in bringing a body of unit mass from infinity to a point is equal to minus gm upon r. So this work done in measuring, it is a measure basically. ये जो work done है, अब gravitational potential क्या था? Gravitational potential was work done in moving a mass, unit mass, from infinity to a point. So this is the expression for gravitational potential. तो अगर यहाँ पर हम r की वैल्यू इन्फिनिटी ले लें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाएगा 0. एंड इफ r इक्वल टू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू आएगी माइनस gm अपॉन r. बेसिकली दिस इज द एक्सप्रेशन. सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का एक्सप्रेशन निकालने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू स्मॉल वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी, यूनिट मास बॉडी, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट कवरिंग डिस्टेंस dx. फिर स्मॉल वर्क डन निकाल के टोटल वर्क डन के लिए हम उसे इंटीग्रेट करेंगे इन्फिनिटी टू पॉइंट r, एंड हेंस वी आर कैलकुलेटिंग द पोटेंशियल टू बी माइनस gm अपॉन r. This gravitational potential, it is a scalar. Next we are introducing gravitational potential energy. देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट हम कई तरह से देते हैं. एज हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को वर्क एनर्जी पार में भी किया था, जिसको हम लेते थे mgh. बट बेसिक कॉन्सेप्ट इसका होता क्या है, दैट एग्जिस्टेंस इज ऑब्टेन्ड हियर. As we have defined gravitational potential, likewise we will also define gravitational potential energy. So gravitational potential energy of a body at a point in gravitational field, it is defined as amount of work done, that is the work done in moving a body from infinity to a point without acceleration. यानी ये बेसिकली क्या है, दिस इज वर्क डन. यहाँ पर वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट. यहाँ हम बॉडी पर कोई कंडीशन नहीं लगाते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में हमने बॉडी का मास यूनिट लिया था, बट यहाँ हम बॉडी का मास कंसीडर करेंगे. तो इसके लिए फर्दर वी विल कंसीडर, बिल्कुल सिमिलर स्टेप है, बस यहाँ हम बॉडी का मास कंसीडर करेंगे. लेट वी टेक अर्थ टू बी अ परफेक्ट स्फीयर विद सेंटर O, रेडियाई r एंड मास m. And let we have to calculate gravitational potential energy at a point P distant r from the center. For it, we will consider 2 points A and B. Let they are separated by distance dx. And point A is at a distance of x from the center of the earth. Now, here as small work done. सबसे पहले हम लेते हैं कि सबसे पहले वर्क डन से भी पहले हम लेते हैं कि अगर कोई बॉडी जिसका मास m है, जो A पॉइंट पे सिचुएटेड है, तो इस बॉडी जिसका मास कैपिटल M है, या अर्थ जिसका मास कैपिटल M है, जिसका हम इन्फ्लुएंस निकाल रहे हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होगा, बाय न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m सिचुएटेड एट large distance from the earth having mass m, तो एक्सप्रेशन होगा gmm upon x square. Now we will say let small work done in moving a body from point A to B. यानी वर्क डन स्मॉल क्यों, क्योंकि बहुत स्मॉल डिस्टेंस, dx इज अ वेरी स्मॉल सेपरेशन डिस्टेंस. तो स्मॉल डिस्टेंस से जब हम बॉडी को मूव करते हैं तो वर्क डन हो जाएगा फोर्स मल्टीप्लाइड बाय दैट डिस्टेंस. सो इट विल बी गिवन बाय gmm अपॉन x स्क्वायर dx. So now what should be the next step? We have to calculate total work done. So when we are calculating total work done in bringing a body from infinity to point P, so total work done हो जाएगा. इसमें हम क्या करेंगे, small work done को हम इंटीग्रेट करेंगे विद इन द लिमिट्स इन्फिनिटी टू r, क्योंकि A पॉइंट हमारा इनफाइनाइट लार्ज डिस्टेंस पे जिसको हमने x एज्यूम किया था. अब यहाँ पर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे gmm आउटसाइड
अब इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट में है, एक्स के विद रिस्पेक्ट में, तो मैं 1/x² को क्या लिख रही हूँ, x की पावर -2। अब ये हो जाएगा GMM, यहाँ पर अब इसे इंटीग्रेट कीजिए, x की पावर -2, ये हो जाएगा -x⁻⁻1। अभी हमने करके दिखाया था इससे पहले वाले डेरिवेशन में, सेम स्टेप हम ले रहे हैं। सो इट इज़ -1/x इन्फिनिटी टू r। दैट मीन्स अब लिमिट्स पुट करने पर ये वैल्यू हो गई, दिस इज comes out to be -GMM/r. So work done in moving a body from infinity to a point, this is gravitational potential energy. This is -GMM/r. Somewhere it is represented by capital U symbol also. तो यहाँ हम एक पॉइंट देख रहे हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो आ रहा है -GMM/r। अब अगर ये टर्म देखें -GM/r, ये क्या हो गया, पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय द मास ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी। तो ये भी रिलेशन हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ द बॉडी, और पोटेंशियल कहें तो पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय मास ऑफ द बॉडी। सो अब अगर हम इसी रिजल्ट को एक दूसरे फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हैं और हम ये कहते हैं, मान लो जो बॉडी जिसका मास m है, जिसको हम मूव करा रहे हैं, लेट इट इज़ मूव फ्रॉम अ पॉइंट हैविंग डिस्टेंस r1 टू पॉइंट r2। तो अगर हम इस वैल्यू इन्फिनिटी टू r की जगह r1 टू r2 लिखते तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या आती, हमारी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन होती r1 टू r2। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करते तो ये हो जाता GMM। अब आप 1/x² का इंटीग्रेट करते तो ये हो जाता 1/r1 -1/r। चेक करके देख लो, यहाँ पे आपको अगर कन्फ्यूज़न है, x की पावर -2 dx r1 r2, ये हो जाता -x की पावर r2 r1। तो ये हो जाएगा, x की पावर -1 है, ये हो जाएगा -1/x r1 r2। तो अब यहाँ पर अगर आप यूज़ कर रहे हैं 1/r2 -1/r1, अब ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, r1 पहले आ जाएगा और r2 बाद में। मतलब ये स्टेप कॉमन स्टेप्स हैं जो हम स्किप भी कर सकते हैं। अगर इधर यहाँ सॉल्व करते हुए आपको कन्फ्यूज़न लगती है, डोंट वरी, सॉल्व दिस स्टेप सो दैट यू विल हैव क्लैरिटी कि हम डायरेक्टली इस स्टेप को क्यों लिख रहे हैं। सो जनरल वे में हमारे पास potential energy when a body, gravitational potential energy when a body is moved from a point distant r1 to r2. So this is the expression. Now see, let me take one case that if the body is moved from surface of earth at a distant from surface of earth, दैट इज़ फ्रॉम अ डिस्टेंट, यानी अगर हम डायग्राम से बताएं कि मान लो कोई बॉडी है जो ए पॉइंट पर है जिसका डिस्टेंस सेंटर से r है, अब उसे हम बी पॉइंट पर लेके जाना चाहते हैं जिसका सेंटर से डिस्टेंस कितना हो गया, r पर प्लस h। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू है h। यानी एक बॉडी को जो सरफेस पे है अगर हम बी पॉइंट पर लेके जाना चाहते हैं, इन दैट पर्टिकुलर केस यू हैव टू कैलकुलेट वर्क डन। तो अगर हम यहाँ देखें, when the body is moved from surface of earth to a point at a height h above the surface of earth, तो हम लिख सकते हैं कि पहले इनिशियल पोजीशन क्या है, क्योंकि मेजरमेंट सारा सेंटर के विद रिस्पेक्ट में है, तो r1 का मेजरमेंट हो गया रेडियस r, कैपिटल R, और r2 का मेजरमेंट कितना हो गया, r प्लस h। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, GMM। दिस इज r1 की जगह, देखिए ये वाला एक्सप्रेशन में हम r1 की जगह कैपिटल R पुट कर रहे हैं और r2 की जगह r प्लस h। वी विल सी व्हाई वी आर डूइंग दिस स्टेप, दिस विल गिव यू मोर क्लैरिटी। अब ध्यान से देखिए स्टेप को 1 by 1। हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे 1/r कॉमन ले लेते हैं, वी आर टेकिंग इट आउटसाइड। कॉमन लेने के बाद अब यहाँ पर अगर 1/r हमने कॉमन लिया तो यहाँ तो आ गया 1, लेकिन यहाँ पर क्योंकि अगर हम r से r को बाहर ले रहे हैं तो यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लिकेशन में कैपिटल R लिखना पड़ेगा, तभी तो अगर आप इस टर्म को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे ये टर्म कैंसिल होगी। सो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए,
थोड़ा सा हम यहाँ पे बाइनोमियल एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, ध्यान से देखिए। अब मैं इसको लिख सकती हूँ 1/r प्लस h बाय आर, 1/r प्लस h डिवाइड बाय r, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी इस r को मैं इसके डिनोमिनेटर में ले गई। अब नेक्स्ट स्टेप में GMM अपॉन r 1 माइनस, अब देखिए r/r 1 और h/r को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, तो जिससे हो जाएगा GMM अपॉन r 1 माइनस 1 प्लस h/r को मैं लिख सकती हूँ उसकी पावर -1, यानी ये टर्म जो डिनोमिनेटर में है न्यूमरेटर में जब आएगी तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी ये कुछ स्टेप्स हैं दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि कैसे हम यहाँ पर प्रोसीड कर रहे हैं। लास्ट स्टेप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड हियर। अब देखिए यहाँ ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है, देखिए हमने ये एक्सप्रेशन पहले भी सॉल्व किया है यूजिंग बाइनोमियल एक्सप्रेशन। जब हमने सॉल्व किया था वेरिएशन ऑफ g विद हाइट, तो वो एक्सप्रेशन हम अगेन यहाँ यूज़ करेंगे 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n, जिसको मैं करूँगी 1 प्लस nx। ठीक है, तो यहाँ पर भी n की वैल्यू कितनी है -1, तो यहीं इसी ब्रैकेट में ही हम इसे एक्सपैंड कर रहे हैं, तो इफ 1 एज सच, अब यहाँ लगाएंगे 1 माइनस n की वैल्यू 1 है तो 1 माइनस h अपॉन r, दैट्स इट। अब सिंप्लीफाई कीजिए GMM अपॉन r, तो ये हो गया 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, तो यानी कि ये हो गई GMM h अपॉन r स्क्वायर। अब देखिए G कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर, ये देखिए ये टर्म, ये फार्मूला कुछ फैमिलियर सा लग रहा है, किसकी वैल्यू है ये? G की वैल्यू, सो इट इज mgh। तो बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर, वी आर फाइंडिंग दैट एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसको डायरेक्टली हम mgh लिखते थे, एक्चुअली उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आज हमने इंट्रोड्यूस किया है, एंड नाउ थ्रू दीज स्टेप्स वी हैव ऑब्टेन द एक्सप्रेशन। सो बेसिकली व्हेन देयर कैन बी द क्वेश्चन दैट व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इट, सो फॉर दैट यू विल सिंपली फॉलो दीज स्टेप्स टिल दिस पॉइंट, and if it is given that deduce the gravitational potential to be mgh from the concept of minus gmm upon r, तो आपको क्या करना है, using this result which we have defined, इस रिजल्ट को यूज़ करके हम कहेंगे कि अगर हम बॉडी को सरफेस ऑफ अर्थ से किसी दूसरी हाइट पर लेके जाते हैं, देन फॉलोइंग दीज स्टेप में एक बार रिव्यू करा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा हमें ध्यान से करना है। r1 की वैल्यू कैपिटल R, r2 की वैल्यू r प्लस h, अब 1/r कॉमन लिया तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये वाला r हम डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। ये सारा स्टेप हम इसलिए कर रहे हैं कि हम इसे एक पर्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सो यू हैव टू फॉलो द स्टेप्स। 1/r प्लस h अपॉन r, अब यहाँ पर फर्दर हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस h/r रेज टू द पावर -1, तो ये इसको मैंने स्टार किया है क्योंकि यहाँ हमने एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन यूज़ की है, और बाइनोमियल एक्सप्रेशन 1 प्लस x रेज टू द पावर n क्या होती है वैल्यू, 1 प्लस nx। तो इस वैल्यू को जब हम यहाँ यूज़ करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं, फाइनली वी गेट द एक्सप्रेशन दैट GM अपॉन r स्क्वायर, ये हो गया एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखिए वही एक्सप्रेशन आ गया जो हम डायरेक्टली 9th क्लास से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन लेते हैं, mgh। I hope this is clear to you. Now practice it by writing in both the ways. Basic concept of minus GMM upon R and deduction of this relation. This question, this concept can be asked in the derivation form.